Good morning, students. Welcome to the another session of Information and Technology. So, we will continue in the same topic that we have already started in last two classes. We are in the topic spreadsheet. In last two class, we have seen that what is workbook, what is worksheet, what is row, what is column, the basic structure of a worksheet, the different components like cell, cell address, formula bar, cell pointer, sheet tab, the different scroll bar. Then we have seen what are the different type of data that we can insert in a worksheet like text, numeric, date and time, and formula. In the same class, we have discussed that what are the different steps that how to work in spreadsheet, like how to create a worksheet, how to open a existing workbook, the different shortcuts to move in a worksheet, जो अलग अलग तरीके से कीबोर्ड और माउस के थ्रू हम लोग कैसे मूव कर सकते हैं किसी वर्कशीट में एक सेल से दूसरे सेल में, उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारा शॉर्टकट्स देखा था लास्ट क्लास में. एंड एट द सेम टाइम वी हैव आल्सो सीन द रेंज ऑफ सेल, कि एक सेल से ज़्यादा जब सेल हो, लगातार एक सीरीज में सेल हो, तो किस तरह से हम लोग रेंज ऑफ सेल को यूज़ करते हैं, कैसे उनको सेलेक्ट करते हैं, और सेल रेंज के एड्रेस को किस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं यूजिंग ए कोलोन. ठीक है, इतनी सारी चीज़ों को देखने के बाद we are going to start today a different topic. Yes, we have also seen the different methods to insert a sheet, to delete a sheet, to rename a sheet, to hide a sheet. ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी लास्ट के दो क्लासेस में देख चुके हैं. Now everyone please come to page number 207. So in this class we will see many things, so I would like to request every one of you, just please go through the video carefully. Many things which is already familiar to you, but still it is a part of the curriculum, so we can't skip the things just because we have already made it in the last few classes. So when we talk about the first topic of the day, that is modifying the content of a cell, it's simply talking about the different methods that how to make changes in the content of a cell. इसके लिए मैंने पहले से कुछ डेटा ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है. इट इज ऑल्सो देयर इन योर बुक इन पेज नंबर 208. तो इस डेटा के थ्रू ही हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कैसे अलग अलग तरीके से हम लोग चेंजेस करते हैं सेल के कंटेंट में. तो जो सबसे पहला तरीका है, you can see in पेज नंबर 207 on the top, modifying the cell content to replace the cell content. जैसे मान के चलिए कि अभी ये एक आपका सेल है, ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है पटना, इसको हमको चेंज करना है. दो दिस इज द करेक्ट वैल्यू, बट सपोज आई वांट टू चेंज इट. उस केस में क्या करना होगा, आप बस उस सेल को सेलेक्ट करेंगे. द फर्स्ट मेथड, इसको एडिट नहीं करना है, इस सेल के वैल्यू को चेंज करना है. यू नीड टू जस्ट सेलेक्ट द सेल एंड जस्ट टाइप द न्यू वैल्यू. सपोज आई वुड लाइक टू मेक इट पाटलिपुत्र. So you can see I have not just made anything. I just clicked in the cell and I have just typed the new value. Automatically it will replace the existing value. Now let me just undo it. Undo के लिए हम लोग अब सबको पता है Ctrl+Z. I will press Ctrl+Z. It will just get into the actual thing. तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्टली सेल के कंटेंट को रिप्लेस कर सकते हैं. कैसे? बाय सेलेक्टिंग द सेल एंड टाइप द न्यू वैल्यू. टू डिलीट द सेल कंटेंट, let me just delete any one of the cell just having which I don't want to keep it in my Excel sheet or in my spreadsheet. तो मान लीजिए मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू को, जैसे महाराष्ट्र का बॉम्बे हो गया, मुंबई हो गया, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ. तो उस केस में हमें क्या करना होगा, नॉर्मली वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट द सेल एंड इन योर कीबोर्ड देयर इज अ की called delete in the right side on the numeric keypad. Normally it is there, or just above the arrow keypad, or in laptop it is just on the top of the row. So just a moment, I will click or I will press the delete. I will get this window in spreadsheet in calc. Normally in Excel we don't get this message automatically. This get delete, sorry, this gets deleted over here. If I will press delete, it will get deleted. ठीक है, तो इस तरीके से नॉर्मली डिलीट हो जाता है एक्सेल में. लेकिन अगर आप कैल्क में कर रहे हैं तो दिस विंडो विल कम एंड यू जस्ट नीड टू प्रेस एंटर. You can see this is how you can delete a value of a cell. So first thing we have seen the how to replace the content of a cell. Second thing we have seen how to delete the value of a cell. Now one thing I would like to add over here, suppose this is Lucknow, also suppose this is Bhopal, and this is not, suppose this is written like this. आपको लग रहा है कि नहीं स्पेलिंग इनकरेक्ट है, आप इसको चेंज करना चाहते हैं. ठीक है, बस आपको एडिट करना है.
To edit the content of a cell, there is a shortcut. Please keep it in your mind. If you want to write, you can write somewhere F2. ठीक है, F2 आप प्रेस करेंगे, जैसे देखिए F2 में प्रेस करूंगा, मैं इसको रिप्लेस नहीं करना चाहता, नहीं मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, मैं बस एक इसको करेक्ट करना चाहता हूँ, दैट आई वांट टू पुट H आफ्टर B, करेक्ट स्पेलिंग BHOPAL। सो मैं F2 जैसे प्रेस करूंगा, देखिए मेरा कर्सर ब्लिंक करने लगेगा, एंड आई जस्ट नीड टू get into the correct position using my arrow key and just type H, press enter. So this is a very simple method to make changes in the content of a cell. So in exam there is a question may come that what is the shortcut which is used to make changes in the content of a cell, or which is used to edit the content of a cell. So you can simply write F2. Then we have next inserting cell. Let's suppose I just want to insert a cell over here. I don't want to insert a row. Please keep it in your mind. मैं यहाँ पर एक नया रो इंसर्ट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ, देखिए आसाम की राजधानी दिसपुर है, मैं इसको नीचे शिफ्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं एक ब्लैंक सेल चाहता हूँ। उस केस में आप क्या करेंगे? ठीक है, ऐसे बहुत बार होता है जब हम रिजल्ट्स के फॉर्मेट बनाते हैं, आपके रिजल्ट्स, एग्जामिनेशन रिजल्ट्स के, और बीच में से कोई एक ऐसा मार्क्स या कोई स्टूडेंट का अगर डिटेल्स छूट गया हो और उसको इंसर्ट करना हो, बीच में पूरा रो इंसर्ट नहीं करना है मान लीजिए, तो उस केस में आपको सिर्फ एक सेल इंसर्ट करना है। तो कैल्क में क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मली जस्ट राइट क्लिक करते हैं, सॉरी सेल को क्लिक करेंगे एक बार, माय माउस कीबोर्ड इज behaving awkwardly, that is why this kind of problem you may feel in between. तो देखिए मैंने इसको सेल को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक जैसे करेंगे there is ऑप्शन ऑफ इंसर्ट, the moment you will click in insert, these 4 options will come: shift cell down, shift cell right, entire row, entire column. So I don't want to insert entire in the entire row, I just want to put the cell down. Click in OK, you can see this is how it will work. जो भी आपको टाइप करना है टाइप कर लीजिए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप चाहे तो सेल को बीच में इंसर्ट कर सकते हैं, एक सिंगल सेल को, ठीक है, आपका जब उस वहां से नीचे सेल ऊपर चला जाए, नीचे चला जाएगा या फिर राइट की ओर चला जाएगा, आप जिस हिसाब से चाहेंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट ए सेल। नाउ यू वांट टू डिलीट द सेल, इंसर्ट कर लिया, आपको समझ में आ गया, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि नहीं, ऑकवर्ड लग रहा है, ये करेक्ट फॉर्मेट नहीं है, मुझे इसको ऊपर करना, डिलीट करना है, यानी इस सेल में कुछ वैल्यू टाइप कर दिया आपने, अब इसको आपको डिलीट करना चाहते हैं। तो डिलीट करने के लिए फिर वही एक तरीका है, राइट क्लिक, डिलीट, ठीक है, देखिए शिफ्ट सेल अप, यानी ये क्या करेगा, सेल को ऊपर की ओर ले जाएगा। दिस इज हाउ इट विल वर्क। एक शॉर्टकट इसका मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, अगर इसको आपको डिलीट करना है कीबोर्ड के शॉर्टकट के थ्रू, स्ट्रेस तो आपने देख लिया, राइट क्लिक करके डिलीट, आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ माइनस की, देखिए आपका कीबोर्ड में जो 2 की होता है, आपका न्यूमेरिक कीपैड जो ऊपर में होता है 1 2 3 4 से लेकर 0 तक, ठीक 0 के बगल में माइनस और अंडरस्कोर दोनों एक साथ रहता है, आपने देखा होगा बैक स्पेस के ठीक पहले। तो आप कंट्रोल के साथ माइनस की प्रेस करेंगे, जिससे भी डिलीट सेल का ये विंडो ओपन आएगा, और ये जस्ट यू कैन सिंपली प्रेस एंटर एंड इट विल कम इनटू द सेम प्लेस वेयर इट्स सपोज्ड टू बी। तो इस तरह से आप इंसर्ट और सेल को एक डिलीट कर सकते हैं अपने स्प्रेडशीट में। कटिंग एंड कॉपिंग द कंटेंट, ये तो बहुत ही सिंपल है, आप किसी भी टेक्स्ट को, किसी कंटेंट को एक जगह से दूसरी जगह तक कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं, उस केस में आप कैसे काम करेंगे? तो नॉर्मली हम लोग करते क्या है, मुझे कहाँ से कहाँ तक डेटा यूज करना है, उस पर्टिकुलर डेटा को सिलेक्ट करेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। तो जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से यहाँ तक का डेटा उठाना है, इसको कॉपी करेंगे और जहाँ पर भी इसको रखना है वहाँ पर ले जाएंगे। मान लीजिए इसी सीट में मुझे कहीं यूज करना है तो राइट क्लिक एंड आई विल सिंपली क्लिक इन पेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। कट कॉपी पेस्ट, आपको अगर यहाँ से हटाना है तो कट पेस्ट करेंगे, अगर यहाँ रखना है तो कॉपी पेस्ट करेंगे। दिस इज नॉट समथिंग दैट आई नीड टू एक्सप्लेन फर्दर, बट यस वन थिंग आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन ओवर हियर, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट पेस्ट स्पेशल। देखिए यहाँ पर मैंने जैसे इसको कॉपी किया और इसके बाद यहाँ पर जैसे मैं इसको पेस्ट करने जा रहा हूँ तो पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आ रहा है। ये देखिए मैं इसका पर्पस आपको समझा देता हूँ। इसको मैं एक्सेल में समझाऊंगा, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। लेट मी जस्ट गो टू द एक्सेल। यस, देखिए यहाँ पर मैंने कुछ रिजल्ट्स का फॉर्मेट बनाया था क्लास 10th का इस साल का, वो एनालिसिस पर्पस के लिए, ठीक है। तो मैं इसी डेटा का यूज़ करता हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ से सारे सब्जेक्ट का मार्क्स है, उसके बाद आपके यहाँ टोटल है और इसके बाद आपका परसेंटेज है,
तो इतना करने के बाद सॉरी, इतना करने के बाद अब मान लीजिए मुझे एक सिंगल सीट चाहिए। यहाँ पर आपके सारे स्टूडेंट का नेम है लेफ्ट साइड में, और उसके बाद सारे सब्जेक्ट का मार्क्स है, टोटल मार्क्स है, परसेंटेज है। मुझे सारे सब्जेक्ट का मार्क्स नहीं चाहिए, मुझे बस स्टूडेंट का नेम चाहिए और टोटल चाहिए। तो मान लीजिए स्टूडेंट को आपने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर आप टोटल और परसेंटेज को कॉपी कर रहे हैं। जैसे मैं मान लीजिए फिलहाल मैं इतना ही स्टूडेंट्स को कॉपी करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर मैं मान लीजिए यहाँ पर दो सेल में आपका इसके पहले के दो, एक में रोल नंबर है, एक में नेम ऑफ द स्टूडेंट है। यहाँ पर मैं टोटल और परसेंटेज को कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ। जैसे मैं पेस्ट करूंगा, देखिए यहाँ पर किस तरीके से दिख रहा है, वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है, आपको अलग अलग वैल्यू दिख रहा है। या फिर मैं इसको एक अलग सीट में अगर लेके जाऊँ, राइट क्लिक करके पेस्ट, देखिए इस तरीके से दिख रहा है। हैशटैग रेफरेंस का एक एरर दे रहा है, ये हम लोग लास्ट टॉपिक है बुक चैप्टर का, देखेंगे इसको। तो ये क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको रेफरेंस नहीं मिल रहा है। किसका रेफरेंस नहीं मिल रहा है? सेल एड्रेस का रेफरेंस नहीं मिल रहा है। तो क्यों, इस दिक्कत कहाँ हो रही है? क्योंकि इस पर्टिकुलर सेल में एक फॉर्मूला लगा हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं, F3 प्लस H3 प्लस J3 प्लस L3 प्लस N3, यानी ये 5 सेल का, यानी 5 सब्जेक्ट का मार्क्स को ऐड करके रखा हुआ है इसमें, ठीक है। अब इसको हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो ऑब्वियस है कि वो क्या कर रहा है, जब उसको सेल एड्रेस मिल नहीं रहा है तो उस तरह का एरर दिखाएगा। लेकिन मुझे चाहिए, ये काम करना है कि मुझे नाम चाहिए, मार्क्स और परसेंटेज चाहिए। तो उस केस में हमारे लिए काफी हेल्पफुल होता है पेस्ट स्पेशल। जस्ट क्लिक इन कॉपी, ठीक है, एंड जस्ट जहां पर भी आपको पेस्ट करना है राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल कीजिए। देखिए ऑप्शन एक दे रहा है वैल्यूज। द मोमेंट यू विल क्लिक इन वैल्यूज, तो वो सारे फॉर्मूलाज को, सारे उसमें कस्टमाइजेशन किए जितने भी चीजें हैं सारे को भूल जाएगा। वो सिर्फ वैल्यू को कॉपी करेगा एंड पेस्ट कर देगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो पेस्ट स्पेशल इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू हैव टू यूज सम वैल्यू विच इज हैविंग सम फॉर्मूला। आपको फॉर्मेटिंग भी कॉपी नहीं होगा, देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मेटिंग दूसरा होगा, ठीक है, इसका फॉन्ट स्टाइल, इसका फॉन्ट साइज सब कुछ अलग होगा। लेकिन जब पेस्ट स्पेशल में वैल्यू करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट किया हुआ रहता है उसी को वो अप्लाई कर देता है। तो इस तरीके से हम लोग पेस्ट स्पेशल का यूज करते हैं, कट, कॉपी एंड पेस्ट। नाउ लेट मी बैक इनटू द टॉपिक। This is that how to insert row and column. This is something that you all are maybe most very much familiar with. Class 8 क्लास 8 में भी आप लोग ये सब चीज ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर भी जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से आपका डेटा था, आपको एक नया रो इंसर्ट करना है, इसके ऊपर में कुछ कैपिटल में हेडिंग्स देना है आपको। नॉर्मली है इंसर्ट जाकर क्या करेंगे, नया रो इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आप नया रो इंसर्ट कर सकते हैं। जहां पर भी इंसर्ट करना है आप उस पर्टिकुलर रो को क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट रो करेंगे, ठीक है, वो उसके ऊपर इंसर्ट करेगा। जब भी आप रो इंसर्ट करेंगे ध्यान देंगे, जैसे मैं यहाँ पर झारखंड के वाले रो में सेलेक्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, इंसर्ट रो करूंगा, देखिए ऊपर में ब्लैंक हो गया, उसके ऊपर में एक ब्लैंक रो इंसर्ट कर देगा। आप अपनी जरूरत के हिसाब से डेटा टाइप कर सकते हैं जहां पर भी आपको जरूरत है। अगर एक सेल इंसर्ट करना है वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। दैट हाउ टू इंसर्ट ए कॉलम। मान लीजिए इस सी और डी के बीच में एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। वो मतलब एक रो पहले इंसर्ट करेगा और इसमें भी एक कॉलम पहले इंसर्ट कर देगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट, इवन यू कैन डिलीट विंडोज यूजिंग द सेम ऑप्शन। आप जैसे राइट क्लिक में इंसर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, राइट क्लिक में आपको डिलीट का भी ऑप्शन दिखेगा। जस्ट यू नीड टू सेलेक्ट द करेक्ट रो। अगर गलती से कोई गलत रो या डिलीट हो भी गया रो या कॉलम, तो उसमें बहुत पैनिक नहीं करना है। जस्ट सिंपली प्रेस कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका जिस तरीके से था वो अंडू हो जाएगा आपका विंडो। दिस इज समथिंग दैट you need to keep it in your mind all the time. So undo and redo is the next topic that we need to discuss. Undo is basically to reverse the action executed in the last time, and redo is used to reverse the action executed by undo. ठीक है, undo का काम है लास्ट एक्शन को कॉल बैक करना है, और redo का काम है undo के एक्शन को रिवर्स करना। तो कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई शॉर्टकट है जिसका हम लोग अपने पर्पस के हिसाब से यूज करते हैं, ठीक है। देखिए मैंने अभी रो इंसर्ट किया था, कंट्रोल जेड कर देता हूँ, सॉरी रो हट गया, मैं मुझे फिर से रो चाहिए और मैं रो इंसर्ट स्टेप्स में नहीं जाना चाहता हूँ, कंट्रोल वाई कर दूंगा, देखिए कॉलम आ गया। तो इस तरीके से आप जैसा चाहे काम कर सकते हैं, कॉलम रो अंडू और रीडू का यूज करके अपने हिसाब, अपने पर्पस को, अपने डेटा को वापस ला सकते हैं, हटा सकते हैं।
जिस तरह से आपको जरूरत हो। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फॉर्मूला, ठीक है। Now, before we start, let me just give you a very simple or very brief introduction about the term formula. This is an expression. Formula is an expression which contain many things like operator, function, cell address, arguments. So, formula is a variety of is a collection of many things, because in a formula we put different things as per the situation. There is the presence of everything as per the demand or as per the requirement of the user. तो फॉर्मूला में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा ऑपरेटर होता है फॉर्मूला में, एक फंक्शन हो सकता है फॉर्मूला में, आपका सेल एड्रेस हो सकता है। तो अभी मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा किसको ऑपरेटर बोलेंगे, किसको फंक्शन बोलेंगे, किसको सेल एड्रेस बोलेंगे ना। तो नॉर्मली आपकी बुक में भी दिया हुआ है, 3 तरीके के फॉर्मूला को डिस्कस किया गया है। फॉर्मूला विथ सेल एड्रेस, फॉर्मूला विथ सेल नेम एंड फॉर्मूला विथ बिल्ट इन फंक्शन। ये नॉर्मली सारे एक्सेल सीट के टॉपिक्स में डिस्कस किया जाता है, फिर भी मैं एक डेमो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैंने यहाँ पर 5 स्टूडेंट का नाम लिखा है और उनका 3 सब्जेक्ट का मार्क्स लिखा है आउट ऑफ 100। अब मुझे चाहिए इनका टोटल। तो इनका टोटल मैं 3 तरीके के फॉर्मूला से निकाल सकता हूँ, सेम आउटपुट निकलेगा। पहला तरीका है फॉर्मूला विथ सेल एड्रेस। तो फॉर्मूला विथ सेल एड्रेस हो या फॉर्मूला विथ सेल नेम हो या फॉर्मूला विथ बिल्ट इन फंक्शन हो, किसी भी सिचुएशन में हमेशा इन एक्सेल सीट, इन ए स्प्रेडशीट, एक फॉर्मूला स्टार्ट होता है एक इक्वल टू से। किससे स्टार्ट होता है? इक्वल टू से। अब आप क्या करेंगे, नॉर्मली सेल एड्रेस को सेलेक्ट कर लेंगे। मुझे किसको किसको ऐड करना है? इंग्लिश का मार्क्स को, तो मैं इंग्लिश का मार्क्स को सेलेक्ट कर, देखिए जैसे मैंने सेलेक्ट किया, क्या आ गया? उसका सेल एड्रेस आ गया। तो इसका सेल एड्रेस क्या है? B2। B2 कैसे बना आप सभी को पता है, कॉलम नेम और रो के कॉम्बिनेशन से। तो ये B कॉलम है, सेकंड रो है, तो ये B2। यहाँ पर मैं प्लस का साइन दे दूंगा। उसके बाद 75 में सेलेक्ट किया, मैथ्स का मार्क्स ऐड करना है C2, ठीक है। उसके बाद फिर से प्लस का साइन दे दिया, फिर से मैंने क्या किया, साइंस का मार्क्स सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए इस फॉर्मूला में क्या क्या है, इक्वल टू तो सारे फॉर्मूला में रहेगा, ये एक तरह का ऑपरेटर ही है, दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। B2 C2 D2 क्या है? सेल एड्रेस है। प्लस क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, ठीक है, दीज आर ऑपरेटर्स। तो हर फॉर्मूला में बहुत सारी चीजें हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का फॉर्मूला यूज कर रहे हो। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में सेल एड्रेस है। सेल एड्रेस मोर और लेस सारे फॉर्मूला में हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि उसी से सारा कुछ होता है। फॉर्मूला विथ सेल नेम जो आगे नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन वो बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब आपका कॉलम नेम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो। तो मैं कह रहा था कि फॉर्मूला विथ सेल एड्रेस इस तरीके से डिजाइन करते हैं, इज इक्वल टू होगा ही होगा। मैंने इंग्लिश का मार्क्स सेलेक्ट किया 85, तो यहाँ 85 नहीं आया, उसका सेल एड्रेस आया। मैथ का मार्क्स 75 है, उसका सेल एड्रेस आया C2। साइंस का 65 है, उसका सेल एड्रेस आया D2। मैं इंटर प्रेस करूंगा, देखिए आ गया। अब इसके बाद आपको अविका का मार्क्स ऐड करने के लिए फिर से फॉर्मूला लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देयर इज अ टर्म कॉल्ड ऑटोफिल इन स्प्रेडशीट। आप बहुत सारे स्टूडेंट फेमिलियर होंगे इस टर्म से। तो ऑटोफिल करता है क्या है, आपके जो फीचर्स यूज किए गए हैं, अप्लाई किए गए हैं किसी सेल में, उसी को कॉपी करता है, उसी को रीयूज करता है, ड्रैग करना पड़ता है बस उस पर्टिकुलर सेल के फीचर्स को। तो मैं देखिए पॉइंटर मेरा अभी यहाँ पर है, नॉर्मल पॉइंटर एक एरो के शेप में दिख रहा है। इसी पॉइंटर को मैं जब यहाँ पर लेके आता हूँ तो ये एक प्लस, बहुत ही पतले प्लस के साइन के कन्वर्ट हो जाता है। इसको मैं ड्रैग कर दूंगा, देखिए इसने उस पर्टिकुलर अलग अलग स्टूडेंट्स का टोटल निकाल दिया। अब इस पे जब क्लिक करेंगे 194 में, तो इसका सेल एड्रेस आपको देखिए दिख रहा होगा, इसका फॉर्मूला इसने चेंज कर दिया, B3 plus C3 plus D3। This is called relative reference. This particular term is called relative reference, ठीक है। ये है नहीं, आगे होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। रिलेटिव रेफरेंस में होता क्या है, when a formula gets copy from one cell to another cell, the address get automatically change as per their respective position। मैंने फॉर्मूला को कॉपी किया, ड्रैग किया, ऑटोफिल फीचर जो मैंने यूज किया, क्या किया मैंने, कॉपी किया, लेकिन उसमें वेट अ मिनट, so I was saying that in relative reference the cell address automatically gets changed,
व्हेन यू कॉपीड फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। तो ये आपका एक फॉर्मूला है, देखिए इसमें भी इसका चेंज हो गया होगा, B4 प्लस C4 प्लस D4। देन इफ आई क्लिक इन दिस पर्टिकुलर सेल, सॉरी बहुत सेंसिटिव है, आप जब भी फॉर्मूला के सेल एड्रेस को क्लिक करते हैं किसी दूसरे सेल को क्लिक मत कीजिए। जैसे मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, इसका फॉर्मूला दिख रहा है, बस इंटर प्रेस कर दीजिए। अगर आप कहीं और क्लिक करेंगे तो वो उसके सेल एड्रेस को ले लेगा। तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला विथ सेल एड्रेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेल एड्रेस हम लोग जानते हैं किसको बोलते हैं, द एड्रेस ऑफ ए इंडिविजुअल सेल दैट इज वेरी यूनिक इन नेचर, और हर सेल का एड्रेस अलग होता है। और वो सेल एड्रेस फॉर्म कैसे होता है, कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन से। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब सेकंड है फॉर्मूला विथ सेल नेम, फिर से मैं इक्वल टू दूंगा। तो सेल नेम के लिए, सॉरी फॉर्मूला विथ सेल नेम में क्या करते हैं, इस 85 75 65 को हम लोग यूज नहीं करेंगे। हम लोग कॉलम नेम क्या रखा है मैंने इसका इंग्लिश, तो मैं लिखूंगा, मैं ब्रैकेट में देता हूँ, ब्रैकेट नहीं भी देंगे चलेगा, बट नॉर्मली दिस इज गुड हैबिट टू राइट द फॉर्मूला विद इन द पैरेंथेसिस। नॉर्मली सारे फॉर्मूला आप देखोगे एक्सेल में हम लोग पैरेंथेसिस का यूज करके ही लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंग्लिश प्लस मैथ्स, सॉरी दिस कीबोर्ड इज आल्सो वर्किंग इन बिटवीन। मैथ्स जैसा है एज इट इज लिखना है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का ध्यान रखना है। साइंस, देखिए मैंने क्या किया, इंग्लिश लिखा, मैथ्स लिखा, साइंस लिखा, उसने ऑटोमेटिकली सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को ले लिया, क्योंकि वो जब फॉर्मूला एक्ट कर रहा है वो एक सिंगल एंटिटी एक्ट कर रहा है। इसको मैंने बस सेंटर कर दिया। तो इस तरीके से भी आप वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं, मैंने फॉर्मूला को बना सकते हैं, जरूरी नहीं है एडिशन ही हो, आपका कोई भी काम हो सकता है आप यूजिंग क्या, सेल नेम। तो फॉर्मूला विथ सेल एड्रेस हम लोगों ने देखा, फॉर्मूला विथ सेल नेम देखा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए इसको भी देखते, इसमें सारा कुछ सेम दिखेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सो डिलीट कर देते हैं, फॉर्मूला विथ बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। ओके, ये आपका लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग कर सकते थे अगले टॉपिक को डिस्कस, बट आई वॉन्ट मेक इट, ठीक है, नहीं तो सेशन लंबा हो जाएगा और आप बोर होने लगेंगे। बाय द वे थैंक यू, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कमेंटेड इन द लास्ट वीडियो, सर बोर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी इट्स 22 मिनट का वीडियो, सो 25 मैक्स टू मैक्स जाएगा। चलिए, तो मैं कह रहा था कि अगर आप फॉर्मूला विथ बिल्ट इन फंक्शन को यूज करना चाहते हैं तो कैसे काम कर सकते हैं। सॉरी, तो फॉर्मूला विथ बिल्ट इन फंक्शन को यूज करने के लिए हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है स्प्रेडशीट में, जिसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। दैट इज समथिंग यू हैव लर्न इन क्लास 7 ऑल्सो। कुछ फंक्शन आप लोगों ने देखा था, जैसे सम, SQRT, मोड, ठीक है, एवरेज, उसी तरीके का फंक्शंस को हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला को डिजाइन करने के लिए। तो कैसे करेंगे, एज यूजुअल इज इक्वल टू देंगे। तो सम करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है SUM। क्या है फॉर्मूला, SUM सम। मैं ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा और इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, और ड्रैग कर दूंगा लास्ट सेल तक। मैंने क्या किया, 85 से ड्रैग कर दिया 65 तक। तो आप देख सकते हैं क्या हुआ, B2 कॉलन D2 खुद ने खुद ब खुद ले लिया। तो ये कॉलन किस लिए है, क्योंकि एक सेल रेंज है, एक सीरीज में है सेल B2 कॉलन D2। उसने B2 को भी लिया, C2 को भी लिया, D2 को भी लिया, लेकिन एज ए रेंज लिख रहे हैं तो B2 कॉलन D2। इसको मैं ब्रैकेट बंद करूंगा, सॉरी, B2 कॉलन E2, B2 कॉलन E2, sorry, yes, it's not D2, it's D2, yes, B2 कॉलन D2। इससे भी इसने फॉर्मूला को कैलकुलेट कर लिया। फिर से दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर आप इसको खुद से भी टाइप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको ड्रैग करना हो। मान लीजिए जरूरी, हमेशा ये भी जरूरी नहीं है कि ये लगातार आपको ऐड करना हो। जैसे बहुत बार हम लोग जब आपका रिजल्ट बनाते हैं तो होता क्या है कि आपका 20 में मार्क्स होता है, 80 में मार्क्स होता है, 20 में होता है, 80 में होता है, फिर 100 होता है, ठीक है। जब हम लोग टोटल मार्क्स करते हैं तो 20 80 को नहीं करते, हम लोग 100 वाले कॉलम को उठाते हैं। तो उस केस में आप सम का फॉर्मूला लगा रहे हैं, लेकिन कॉलन का यूज मत कीजिए। जैसे कि मान लीजिए, इसी में आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि मुझे
85 करना है और 65 यानी इंग्लिश और साइंस का मार्क्स ऐड करना है, मैथ को स्किप करना है, तब क्या करेंगे, वी विल यूज कोमा एंड आई विल जस्ट सिंपली राइट D2। समझ में आ रही है आपको? जब सेल लगातार हो, एक साथ हो, कोई गैप ना हो, तब आप कॉलन का यूज कर सकते हैं सेल रेंज के फॉर्म में D2 कॉलन D2। लेकिन जब सेल अलग अलग जगह पर हो और उनको ऐड करना हो, सेल के बीच में ब्रेक हो और उनको ऐड करना हो, तो हम लोग कोमा का यूज करते हैं। जैसे दैट इज कॉल्ड 85 और 65, यानी मैथ सॉरी इंग्लिश और साइंस को ऐड करना है, तो इसका है B2, इसका है 65 का D2। तो मैंने क्या किया, B2 कोमा D2। देखिए, सॉरी, it should not come like this. Let me check in Excel. Wait a minute, huh? Okay, देखिए, wait, let me just copy this, go to Excel sheet 3, paste it, पेस्ट स्पेशल नहीं करते हैं, पेस्ट नॉर्मल पेस्ट कर देते हैं। ओके, sorry, this should not happen like this। और I am incorrect, maybe I am incorrect, yes, कॉपी हुआ। अब मैं इसको फॉर्मूला लगाता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ठीक है। ओके, यस, थैंक यू टू जस्ट हैव पेशेंस। सम, शायद मैं गलत हूँ, yes, I told you, so this is how it happened। what I was trying to say कि अगर आपको दो सेल को, इसको और इसको ऐड करना है, तो मैं सम में कॉमा लगाकर भी काम कर सकता हूँ। अगर मुझे सम यूज नहीं करना है और बिना नॉर्मल फंक्शन का यूज, जैसे सॉरी, आई जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन वन थिंग, कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में जो हमने टाइप किया था, ये जो टाइप किया था B2 कॉलन D2, इसमें सम है क्या, सम है बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड टाइम ए फॉर्मूला यूजिंग आपका बिल्ट इन फंक्शन। सो when we use this built-in function, the output will be same, but there are certain predefined function. The function are basically predefined formula. Functions are basically predefined formula. There are many function which is given in your book in the 3 or 4 table. We will try to show you the demonstration of different function in the next video कि किस तरह से अलग अलग फंक्शन को यूज करते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा था कि यहाँ पर ये तो फंक्शन का यूज करके आपने कर लिया, लेकिन आप मान लीजिए नॉर्मल फॉर्मूला का यूज करना चाहते हैं सेल एड्रेस से, और आप सिर्फ इसको और इसको ऐड करना चाहते हैं, तब क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, प्लस करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इससे भी आपका काम हो जाएगा। तो आपको सोचना होगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा जब भी आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका सिंपल एक सेल रेंज के फॉर्म में लगेगा, आपको अलग अलग जगह पर फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है। तो जब भी आप काम करें, तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं और आप अपना काम निपटा सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट 3 टाइप ऑफ फॉर्मूला दैट वी हैव। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, सम B2 कॉलन D2, इसका देखिए फॉर्मूला सम B3 कॉलन D3। तो इस तरह के रेफरेंस को हम लोग बोलते हैं सेल रिलेटिव रेफरेंस। क्या बोलते हैं, रिलेटिव रेफरेंस। तो this is the things that we have to discuss today। I hope the things that we have discussed is clear to you। if having any doubt, please do let me know in the group or in Shweta ma'am group if you have any doubt। तो ये आज के लिए आज काफ़ी है, आप इसके बाद के जो भी टॉपिक है हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। so thank you everyone, stay home, stay safe and yes, stay happy।